ایران تو بڑھ گیا، ایران کا پروگرام بڑھ گیا، کیونکہ ان کی جو شیعہ حدیثیں ہیں وہ بالکل ان کے مخالف ہیں اور وہ ان کو منع کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلا حوالہ الکافی کا میں دوں گا، کتاب الحجت، کل رایت طرف قبل قیام القائم فصاحب طاغوت یعبد من دون اللہ۔ امام قائم، امام مہدی کے قیام سے پہلے جو بھی جھنڈا اٹھایا جائے گا اس کا اٹھانے والا طاغوت ہوگا۔ تو جھنڈا بھی پہلے نہیں اٹھا سکتے، ہتھیار بھی پہلے نہیں اٹھا سکتے۔ امام زمانہ کے آنے سے پہلے آپ جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے، آپ ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے وہ ہتھیار یا جھنڈا امام قائم سے پہلے اٹھایا تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اگر آپ نے اٹھایا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ایک بلا آئے گی جو آپ کو زمین پر مار ڈالے گی۔ فرمایا لا تسبقوهم بالتقدم فیسرعکم البلا، خبردار اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے پہلے تلوار نہیں اٹھانا، اگر کرو گے تو بلا تمہیں زمین پہ مار، اللہ اکبر، زمین پہ مار ڈالے گی۔ بالکل یہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو جو حالات انہوں نے کیے ہیں، جو مسائل انہوں نے پیدا کیے ہیں، کہ امیر المومنین سے ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ اللہ، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں فتنے ہوں گے تو ہم تب کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خبردار امام مہدی کے ظہور سے پہلے اگر تم نے ہتھیار اٹھایا تو ایک بلا تمہیں زمین پر مار ڈالے گی۔ ان کی اپنی احادیث کے خلاف ہے جو یہ کرتے پھرتے ہیں، سب کچھ ان کی اپنی احادیث کے خلاف جاتا ہے۔ بحار الانوار میں یہی حدیث اس طرح سے ملتی ہے، یہ سب ان کی کتابیں ہیں، ان کی حدیثیں ان کی کتابیں ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ بحار الانوار میں ایک حدیث ملتی ہے، جو شخص یہ سوچے کہ امام قائم سے پہلے میں بغاوت کروں یا ہتھیار اٹھاؤں تو وہ شخص اسی دنیا پر جہنمی ہوگا اور اس کے لیے سخت برات ہے۔ جو امام قائم سے پہلے، اور روضۃ الوائدین میں یہی حدیث آپ کو مل جائے گی، جو مشہور کتب ہیں ان میں یہ احادیث کثرت سے ملیں گی کہ جو شخص امام مہدی اور امام زمانہ سے پہلے ہتھیار اٹھائے گا وہ یقیناً بلا اس کو اچک لے گی اور اسی زمین پر مار ڈالے گی۔ لہذا اب غور کرتے ہیں کہ بات ہے کیا۔ ملک شام میں انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، وہاں پر وہ بچہ آپ کو یاد ہوگا جو اہل سنت کا بچہ تھا، اور انہوں نے اپنا انقلاب کے طور پر انقلابی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، اور کب سے بنائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو جو قتل عام کرتی پھرتی ہیں، اور خود سے ان کے مراسم جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، اور کلبھوشن یادو بھی اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انڈیا سے انہوں نے 1 روپے کے عوض انہیں تیل دیا ہوا ہے، جبکہ کبھی پاکستان کو 1 روپے کے عوض انہوں نے پیٹرول یا ڈیزل نہیں دیا، اور انڈیا سے ان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ لہذا پاکستان میں بھائی ہندوستانی اور اپنا افغانستانی اور ایرانی، یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر آپ ملائیں آپ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی جان ان کا جو شروعات ہوتی ہے وہ منافقت سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ نفاق اکبر کے شکار ہیں۔ آگے دیکھیں آپ کہ ان کی مسلمانوں سے دشمنیاں، مسلمانوں پر لعن طعن، مسلمانوں کا قتل عام کرنا، فاطمیون کی جماعتیں بنانا، غالبیون کی جماعتیں بنانا، اور اس کے علاوہ زینبیون کی جماعتیں بنانا، اور پروکسیز ان کی دیکھیں، اور ملک شام میں جو اہل سنت کا انہوں نے حشر کیا، جو وہ معصوم بچہ آپ کو یاد ہوگا جو کہتا تھا کہ میں تمہاری شکایت اللہ سے جا کر کروں گا،
اور इनको तरस ना आया, और वहां पर जो हशर इन्होंने किया, और कब से इन्होंने हथियार उठा रखे हैं, हमेशा काफिरों से इनके मुरासम रहे और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए, मुसलमानों को कत्ल किया और मुसलमानों को मारा। यहाँ तक कि शाम में, इराक में और दूसरे जो करीबी ममालिक हैं उनकी जो प्रॉक्सीज इन्होंने बनाई हुई हैं, जिनमें इन्होंने हिजबुल्लाह जमात बनाई हुई है, फलानी जमात, टिंगनी जमातें बनाई हुई हैं, सब हथियारों से लैस हैं और सब दिन रात कत्ले आम पर लगी हुई हैं। लिहाजा ये अपनी ही अहादीस के खिलाफ हैं और ये मुसलमानों को गालियां देने, मुसलमानों को कत्ल करने, मुसलमानों को मारने पीटने, सहाबा इकराम को गालियां देने और अज़वाजे मुताहरात को गालियां देना, और उसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं जो कि कलमा हक का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उनको गालियां देना, उन पर लान तान करना, इसको इन्होंने मजहब बना लिया है। और हर बात पर जो है ये ढूंढते हैं बात को कि मुसलमानों को गाली कैसे दी जाए, मुसलमानों पे लानत कैसे की जाए, मुसलमानों को बुरा भला कैसे किया जाए। अगर शियों की ऐनक पहन के देखें तो दूसरा बंदा मुसलमान भी आपको नजर आना बंद हो जाता है। लिहाजा इनका ये जो हथियार उठाने का मामला है ये पुराना है भाई, ये आज से नहीं उठाया हुआ। इनका हसन अल यारी भी यही हदीस पढ़ के इन्हें सुना रहा है कि भाई अगर आप इमाम एक जमाना से पहले हथियार उठाते हो तो आपको बला जमीन पर मार डालेगी। उसने आयतुल्लाह खामनाई के मुतल्लिक बताया कि अगला मर गया है तो इसी वजह से मर गया है कि जनाब उसने इमाम ज़माना से पहले हथियार उठाया है। लिहाजा बात यह है कि अगर ये बात वाकई सच्ची है तो फिर शाम में आपने हथियार पहले से उठाए हुए थे, अब ये हदीसें आपको याद क्यों आना शुरू हो गई हैं? शाम में आपने जो हशर किया, जो हमारी आले सुन्नत माओ बहनों बेटियों बच्चियों का हाल किया, जो हशर किया शाम में आपने, वो सबके सामने तारीख है जिसमें वो मासूम बच्चा कहता था कि मैं अल्लाह से जाकर आपकी शिकायत करूंगा। जो मुसलमान मर्दों को आपने सरेआम चौकों में फांसियां दी, जो उनके टुकड़े किए, जो एक आपने वो कीलों वाला बनाया हुआ था सजा देने का तरीका कि उसके नीचे इंसान को लिटाया और ऊपर वो कीलों वाला ठप दिया और वो कील उसके जिस्म से आर पार हो जाया करते थे। और ये खतरनाक सजाएं बशारतुल असद से मिलकर अपनी प्रॉक्सीज वहां पर भेजकर आपने जो हशर करवाया शाम में, जाहिर सी बात है वो सब आपके सामने है। आज तक आप खड़े नहीं होते सिवाय गालियां देने के, आपको कोई और बात आती नहीं है। मुसलमानों पर लानते करने के आपको कोई और बात नहीं आती। आपको किसी को बुरा भला कहने, अज़वाजे मुताहरात की, सहाबा इकराम की तज़लील करने के अलावा आपके पास कौन सा दीन है? आप खुद अपने ही दीन के खिलाफ हैं। आप हथियार उठाए हुए, कब से उठाए हुए हैं? ये अमीरुल मोमिनीन से जो हदीस है ना कि आपके बाद फितने होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मेरे बाद जो फितने होंगे उनके खिलाफ तुम हथियार तब उठाना जब इमाम का ज़हूर हो जाए। तो इमाम के ज़हूर से पहले जो शख्स एक झंडा भी उठाएगा वो बंदा जो है ना उस पर बरात है। लिहाजा आप सब कुछ कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 1979 से कर रहे हैं। 1979 से जैसे ही वो खमीनी आया और खमीनी ने आकर अपना काम शुरू किया, तब से आपने ये जमातें बनाई, इंडिया के साथ मिलकर प्रॉक्सीज को जो हैं उनको आपने साथ मिला लिया और उन प्रॉक्सीज से के जरिया से आपने पाकिस्तान में जो हशर मचाया, जो यहाँ सुन्नी शिया का फसाद करवाया, जो यहाँ पर आपने कत्ले आम किए और यहाँ पर तकरीबन 30 लाख से ज़ायद उलमा जो हैं वो कत्ल हो गए, उनको शहीद कर दिया गया। और ये सारा कुछ आपका तरीका भाई शुरू से ही है। तो तब से लेके अब तक आपको बला ही उचक रही है, आज कोई बला नहीं आ गई। लिहाजा ईरान का ये जो हमला है वो भी इनकी रवायात और इनकी अहादीस के मुखालिफ है और इनकी अहादीस की मुखालफत करता हुआ ये हमला जो है ये हमें बताता है कि फारस जो है ख़त्म हो जाएगा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक याद है कि आप रहलत फरमा रहे थे, लेटे हुए थे कि अचानक उठ के बैठ गए। हज़रत आयशा मुताहरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज ने दीवार में सुराख कर लिया। वाइलुल अरब वाइलुल फारस, अब फारस के लिए और अरब के लिए तबाही आन पहुंची। और वो याजूज और माजूज और कोई नहीं थे, वो याजूज और माजूज ये यहूदी थे ज़ायनस, जो यहाँ पर अपना आकर उस तब 1920 में इन्होंने यहाँ पर आकर अपना पड़ाव डाल लिया फ़लस्तीन में, और यहाँ पर आके बैठ गए, पूरी दुनिया से मार खा के यहाँ पे आके बैठ गए। यही है वो याजूज और माजूज। तुमसे ये हवा में से हमला करेंगे, और देख लें वो जहाज़ उड़ाते हैं और हवा में से, आसमानों से आप पर हमले करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो यहूदी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इतने यहूदी इसराइल में नहीं पाए जाते जितने यहूदी ईरान में पाए जाते हैं। और ईरान में किसी एक सुन्नी की कोई मस्जिद नहीं है। ठीक है, ये हशर है इनका, ये हाल है इनका। ये अहले सुन्नत वल जमात को काफिर समझते हैं। ये कहते हैं दूसरा मुसलमान भाई हमारा भाई नहीं है, बल्कि कुफर की इंतहा तक जाते हैं और बिल्कुल किसी चीज पर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते, बल्कि अपने तरीके से चलते हैं। जो तरीका इनको सही लगता है ये उसी तरीके पर अमल करते हैं। और किसी आपने भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, तो भाई अमन आप कायम होने कब देते हैं? दिन रात तो आप सहाबा पर लगे हुए हैं भाई भौंकने पर, दिन रात आप अज़वाजे रसूल पर भौंकने पे लगे हुए हैं, दिन रात आप लगे हुए हैं जनाब बस गुस्ताखियां करने पर। तो कैसे अमन कायम होगा? अमन जो है वो कायम होने दें। अमन इस तरह से कायम होगा कि आप भाई सहाबा इकराम को सहाबा इकराम की इज्जत पर माने, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इज्जत पर माने, अज़वाजे मुतहरात अलैहिमुस्सलाम की इज्जत करें और दूसरे मुसलमान भाई को भाई समझें। नहीं तो ये सीधी सीधी हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वाइलुल फारस, ये फारस जो है इसके लिए तबाही है, वाइलुल अरब और अरब के लिए तबाही है। तो लिहाजा फारस जो है अब रसूल अल्लाह की उस हदीस के मुताबिक तबाह हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हथियार उठा लिए हैं। और ये यकीन जाने कि बला जो है इन्हें इसी फारस को उचक लेगी, और फिर ये फारस से जो है वो जनाब ख़त्म करके इन्होंने आगे अरब की तरफ बढ़ना है। फिर अरबी जो है उनको ये दबा लेंगे, यहाँ तक कि यहूदी मदीने तक पहुँच जाएंगे और फारस नाम की, ईरान नाम की कोई चीज़ बकाया नहीं रहेगी। उसके बाद फिर ये झंडे जो हैं यूरोप में इकट्ठे होंगे और गालबन ये ऑस्ट्रेलिया का मकाम होगा, और वहाँ से ये निकलेंगे। स्पेन में एक जगह है, वहाँ से ये निकलेंगे और ये जमा होके फिर तुर्की की तरफ बढ़ेंगे। और तुम्हारा ईरान का कोई भी साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि ईरान हार जाएगा। मैं आपको 1,00,000% गारंटी से कहता हूँ कि ईरान हार जाएगा, ईरान हार जाएगा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और तुम लोग अपनी ही अहादीस के खिलाफ हो। लिहाजा तुम्हारा हर अमल तुम्हारी अहादीस के खिलाफ है, लिहाजा तुम हार जाओगे, कभी तुम नहीं जीत सकते। कोई गुंजाइश ही बकाया नहीं है कि तुम जीत जाओ। ईरान बढ़ गया, समझें, ईरान का प्रोग्राम बढ़ गया, खत्म। हाँ जी, ये सिस्टम खत्म। और ये यकीन करें कि मुसलमानों से ये जो आपकी नफरतें हैं ये आपके हाथ की पैदा की हुई हैं, और आज भी आप नहीं मुड़ते हैं और दूसरा मुसलमान भाई आपको मुसलमान नजर नहीं आता। आप ठेकेदार मोमन बने हुए हैं, जबकि ना कलमा, ना नमाज, ना हज, ना रोज़ा, ना ज़कात, कोई शय नहीं अल्लाह वाली, और बस आप बने हुए हैं मुसलमान, धक्के से मोमन बने हुए हैं। तो वो आप लाख दफ़ा बने रहें, लेकिन आपकी रवायात और आपकी अहादीस और आपकी किताबें कहती हैं कि आप हारेंगे और बला आपको उचक लेगी और ईरान ख़त्म हो जाएगा, ईरान का नाम लेने वाला कोई ना होगा और ये सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा।